Hello dear students. Hi, this is Nasir Ahmed and you are watching my channel, My Classroom for English and Maths. Dear students, I am very glad and very happy to welcome you on this platform. Through this channel, we can learn English and Mathematics of different classes by State Board of Maharashtra. Dear students, let's start our first lesson. But how could we start our first lesson? I have 7th standard textbook in my hand of English subject. This is my English book 7. From this book we are going to start our lesson now. As you can see, there is topic 1.1. It's a small word. This topic comes from this book. Okay? Without wasting a time, let's start our lesson. I wanted to discuss about the contents and the syllabus of this book, but I think there is no enough time to discuss. We'll discuss later. That's why, without wasting any time, we have to start our lesson now. Dear students, now open your textbook and keep a pencil with you. That's why while reading you can write the meaning of those difficult words which I am going to explain now. Now let's start the poem. First I will read the poem by pronouncing each word correctly, and you have to watch and listen very carefully. This poem is written by Richard M. Sherman and Robert M. Sherman. These are the poets of this poem. This is a very beautiful poem and also known as a Disney song. You can see while reading and the explanation that how beautiful this poem is. Now let's take a start. I will read each line and simultaneously I will explain. Okay? Now let's concentrate. It's a world of laughter, and it's a world of laughter, a world of tears. It's a world of hopes and a world of fears. There's so much that we share that it's time we're aware. It's a small world after all. It's a world of laughter. Laughter के meaning क्या होता है? Laughter यानी हंसी. And what does the laughter mean? What does the laughter indicate? Laughter indicates our happiness. When we are happy, we laugh. This line says it's a world of laughter. It means this is a world of happy people who are having happiness in their lives. A world of tears. A world of tears. Tears का मतलब होता है आंसू. तो tears क्या इंडिकेट करते हैं? Tears क्या इशारा करते हैं? Tears ये इशारा करते हैं कि जब हम दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, गम में होते हैं, तब हमारी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं. Tears are the symbol of grief and sorrow. A world of tears, इसका मतलब ये हुआ कि जहां दुनिया में खुशियां हैं, खुशियां लिए हुए समेटे हुए लोग हैं, वहीं पर उनकी जिंदगियों में दुख भी है. It's a world of hopes. Hope का मतलब होता है उम्मीद. Hopes यानी उम्मीदें. अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि उम्मीदें कौन करता है? उम्मीदें वो शख्स करता है जो सोचता है. And the people who think they are alive, because मुर्दा यानी डेड सोच नहीं सकते, जो जिंदा हैं वो सोचते हैं और उन्हीं की उम्मीदें होती हैं. उम्मीदें कुछ कर दिखाने की, उम्मीदें अपना मुस्तकबिल रोशन करने की, उम्मीदें अपनी एक अच्छी ज़िंदगी की, उम्मीदें
तरक्की हासिल करने की, अपने देश का नाम बुलंद करने की बेशुमार सी उम्मीदें जो हैं हमारे अंदर मौजूद होती हैं। जहाँ हमारे दरमियान खुशियाँ होती हैं, हमारी ज़िंदगी में हम देखते हैं कि खुशियाँ होती हैं, गम होते हैं, उसके साथ साथ उम्मीदें भी होती हैं। एंड अ वर्ल्ड ऑफ फियर्स। अब फियर्स के मानी डर के होते हैं। टू फियर यानी डरना, खौफ खा जाना, डर जाना। तो फियर कहाँ से आता है? फियर ये उस वक्त क्रिएट होता है, इंसान उस वक्त डर जाता है जब वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है। वेन एवर ही लूजेज हिज कॉन्फिडेंस ही फियर्स। जब कभी भी वो अपना कॉन्फिडेंस छोड़ देता है तब वो डर जाता है। अब क्या क्या वजूहत हो सकती है डरने के? देयर आर सो मेनी सेवरल कॉजेस ऑफ फियर। जैसे कि फियर से डिप्रेशन हो जाते हैं, फियर से या फिर डेंजर के थ्रू फियर जो है हम फील करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कैलेमिटीज हैं, उससे हम जो है डर जाते हैं। तो उसके बाद जो लाइन है हमारे पास में, देयर्स सो मच दैट वी शेयर। बहुत सारी बातें हैं जो हम शेयर कर सकते हैं, जो हम एक दूसरे को बता सकते हैं। देयर सो मच दैट वी शेयर, हम कई सारी बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। दैट इट्स टाइम वी आर अवेयर, और हमें ये जान लेना चाहिए। क्या जान लेना चाहिए? इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल। आखिरकार ये एक छोटी सी दुनिया है। तो पोएट ऐसा क्यों कह रहा है कि ये एक छोटी सी दुनिया है? क्योंकि लाफ्टर और ग्रीफ, सोरोज, उम्मीदें, होप्स, फियर्स, दीज आर द कॉमन थिंग्स। ये कॉमन थिंग्स हैं जो हर इंसान के अंदर में होती हैं। चाहे वो इंसान यहाँ हमारे दरमियान में रह रहा हो, या हम खुद हैं, या आउट ऑफ कंट्री रह रहा हो, आउट ऑफ कॉन्टिनेंट से रह रहा हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो इन चारों जज्बात से और भी कई तरीके की सिमिलर होप्स जो है, सिमिलर एक्सप्रेशन जो है वो रखता है। तो इस नज़रिए से अगर हम देखते हैं तो सारे के सारे लोग जो है वो यकसा नजर आते हैं, एक जैसे नजर आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया छोटी सी नहीं है, ये दुनिया बड़ी नहीं है, बल्कि दुनिया बहुत छोटी है। क्योंकि हर एक इंसान जो इस दुनिया में बसता है उसके अंदर में ऐसे ही एक जैसे ही जज्बात है। दैट इट्स टाइम वी आर अवेयर, हमें जान लेना चाहिए। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल। दिस लाइन इज रिपीटेड 4 times here. It's a small world after all. It's a small world after all. Now let's take second stanza here. There is just one moon and one golden sun, and a smile means friendship to everyone. Though the mountains divide and the oceans are wide, it's a small world after all. There is just one moon. Moon के तो मीनिंग आपको पता ही है। There is just one moon. इस दुनिया पर हम देखते हैं कि एक ही चांद है, एंड वन गोल्डन सन, और एक ही सुनहरी सूरज है, एक ही सुनहरा सूरज है। A smile means friendship to everyone. स्माइल जो है हमारी, वो एक सिंबल है फ्रेंडशिप का, और ये सारी चीजें जो है वो कॉमन है, हर किसी के साथ में होता है। यानी कि एक ही सूरज है जो हम भी देखते हैं, दूसरी कंट्रीज के लोग भी देखते हैं, उसी से दिन चढ़ता है, उसी से दिन ढलता है, उसी सूरज से। वही चांद हम भी देखते हैं, वही चांद आउट ऑफ कंट्रीज में, दुनिया के हर कोने में किसी भी हिस्से में रहने वाला शख्स हो, वो उसी चांद को देखता है, कोई नया चांद नहीं होता। तो दीज आर द कॉमन थिंग्स। एंड स्माइल मीन्स फ्रेंडशिप टू एवरीवन। मुस्कुराना, दोस्ती करना, ये सारी चीजें जो है वो हमारे साथ भी हैं और उनके साथ भी हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। दो दी माउंटेन्स डिवाइड, हालांकि माउंटेन्स यानी बड़ी बड़ी पहाड़ियां जो हैं वो हमें डिवाइड करती हैं, अलग अलग करती हैं, हमारी दरमियान सरहदों को बनाती हैं, हमें बांटती हैं। एंड दी ओशंस आर वाइड, और बड़े बड़े समंदर हैं कि जिसके इस तरफ और उस तरफ मुख्तलिफ किस्म की आबादियां बसी हुई हैं, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल। तो पोएट ऐसा क्यों कहना चाहता है? क्योंकि आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, हम ये देखते हैं कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि पलक झपकते ही हम किसी से भी रूबरू हो सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस भी हम बहुत सारे डिवाइसेस के थ्रू जो है फौरन बात करते हैं, फौरन जो है एक दूसरे को आमने सामने देख लेते हैं, एक दूसरे के हालचाल जान लेते हैं।
हालांकि एक बंदा यहाँ इंडिया में है और दूसरा अमेरिका में है, दोनों आमने सामने बात कर रहे हैं थ्रू द स्क्रीन। कितना एडवांस हो गया है ज़माना। इस नए से हम ये कह सकते हैं कि ये दुनिया जो है एक छोटी सी दुनिया है। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, इट्स अ स्मॉल 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 वर्ल्ड। तो यहाँ पे पोएट ये कहना चाहता है कि ये आखिरकार छोटी सी दुनिया है, ये छोटी सी दुनिया है, ये छोटी 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 सी दुनिया है। उसके बाद भी आप यहाँ देखेंगे कि टाइटल में यहाँ पे 3 डॉट्स लगे हुए हैं। दिस इज द साइन ऑफ कंटिन्यूएंसी, यानी यहाँ पर ये बात कंप्लीट नहीं हो गई है। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, ये कंप्लीट नहीं हुआ, बल्कि ये कंटिन्यूअसली होता जाएगा। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। जैसा कि आपने समझा, जैसा कि आपने उसके वर्ड्स को सुना, उसके मीनिंग को समझा, उनके मीनिंग को जाना, तो इससे ये एहसास होता है कि ये जो दुनिया है ये बहुत छोटी सी दुनिया है, और ये जो पोएम है ये वाकई में बहुत ही खूबसूरत पोएम है। मुझे लगता है कि आपको इसका ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम आवर एक्स्ट्रा वर्कशीट देयर इज अ क्वेश्चन। Read the poem and answer the following questions. हमको पोएम पढ़ना है, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिए है, और जो नीचे दिए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको पढ़कर उनके आंसर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ वर्ल्ड इज इट? ये किस तरह की दुनिया है? आंसर है इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। ये कैसी दुनिया है? एक छोटी सी दुनिया है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी सन्स एंड मून्स आर देयर? इस दुनिया में कितने चांद हैं और कितने सूरज हैं? तो हमको पता है कि देयर इज ओनली वन सन एंड ओनली वन मून इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में सिर्फ जो हम देखते हैं कि एक ही चांद है और एक ही सूरज है। थर्ड क्वेश्चन भी है, व्हाट डज अ स्माइल मीन? कि स्माइल करने के या मुस्कुराने के क्या माने हैं? अ स्माइल मीन्स फ्रेंडशिप टू एवरीवन। स्माइल क्या मीन करता है? फ्रेंडशिप मीन करता है। ये क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम योर मोबाइल स्क्रीन। ओके, सिमिलरली वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कलर हैज द सन? यानी सूरज का कौन सा कलर इसमें बताया गया है, या सूरज का कौन सा कलर है? इट हैज गोल्डन कलर। कौन सा कलर दिखाई देता है? कैसा दिखाई देता है सूरज? सुनहरी। फाइंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पोएम। आपको ये नीचे के वर्ड्स पढ़ने हैं और इनके अपोजिट्स पोएम में से फाइंड आउट करने हैं और यहां लिखने हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा वीप। वीप करना है रोना, सिसकना, रोना। तो रोने का वर्ड क्या हो सकता है? हंसना। वीप यानी रोना और लाफ यानी हंसना। ठीक है, उसके बाद का वर्ड है हमारे पास प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करना यानी मल्टीप्लाई करना, यू नो इन मैथमेटिक्स। प्रोडक्ट, इसका वर्ड हमको पोएम में क्या मिल जाएगा? डिवाइड। क्या मिलेगा? डिवाइड। उसके बाद का वर्ड है नैरो। नैरो यानी सकरा, यानी जिसमें ज्यादा स्पेस ना हो। उसका अपोजिट क्या आएगा? वाइड, क्योंकि वाइड के मीनिंग होता है चौड़ा, दूर तक फैला हुआ। बिफोर, बिफोर यानी पहले। उसका उलट क्या हो जाएगा? उसका अपोजिट आफ्टर, आफ्टर यानी बाद में। इसे भी आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे थ्रू टेकिंग द स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड this is a personal type question. The question is, are you agree with the poets and why? क्या आप पोएट से एग्री करते हो, और अगर करते हो तो क्यों करते हो?
यू हैव टू राइट इट्स आंसर ऑन योर पर्सनल बेसिस, ठीक है। उसके बाद का जो पार्ट है, अब हम द इंग्लिश वर्कशॉप ऑफ दिस पोएम, दिस इज इंग्लिश वर्कशॉप, वी विल डू इट इन नेक्स्ट लेसन। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, सिर्फ एक रिक्वेस्ट, लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।